everyone and welcome back to my YouTube channel. So if you're new here, so hi, I am Tanisha and I would really like if you take a moment and subscribe down to my channel. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? This video is the extreme college guide. All you need to know, the only advice you guys need as you guys are going to enter the college life. And I wish I knew these things earlier, but yes. So without wasting time, let's move into the video. Also, before starting the video, I would request you all to please comment down अगर आपको मेरे चैनल पे कैसी टाइप की वीडियोस देखनी है. What do you guys want to see? College makeup, like how do I style myself for college, or any kind of things that you want to see, my vlogs, or any tips that you guys want. So अगर आपको कुछ जानना है, कुछ चाहते हो, तो मैं अगली एक वीडियो उस पर बना दूंगी. So without wasting time, let's move into the video. College is going to be a new beginning for you all. Like you will enter a new space of random individual strangers who you guys don't know. They don't know you, and you are a complete layman to them, and you are like completely anonymous to anybody out there, and आप किसी को नहीं जानते हो. So it is a fresh beginning, a new start. आपकी जो स्कूल लाइफ है उसको बिल्कुल आपको साइड पे रखना है. द बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर स्कूल लाइफ और द गुड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर स्कूल लाइफ, यू हैव टू लीव एवरीथिंग aside and start from the beginning, from the scratch in college. The college life is completely a new beginning. Only one tip that I give you, like a one line that I feel जो मैं follow करती हूँ, करती नहीं थी और करनी चाहिए, और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम वो एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो और follow करो. That is, first impression is the last impression. My grandmother used to always teach me this thing, that first impression is the last impression, and that is what I want you guys to know, कि first impression पे जो impression हो गया, that is the last impression. So you have to behave in a certain way. Before starting from any of those points like friendships and stuff like that, I want to address this issue first. This is the first guide that I want to give you all, and especially the guys watching this video. This guide is for you, only for you. Guys, जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे, you will see ragging, bullying, arguments, fights. अब आई एम नॉट सेइंग रैगिंग एज वॉट यू हैव वॉच्ड इन मूवीज कि रैगिंग करेंगे भाई तुम्हारे से कि ये करो वो करो ना. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम थिंग्स लाइक पार्क. अगर तुमने कहीं गाड़ी कर दी तो कोई सीनियर आके बोले कि नहीं यहाँ से गाड़ी हटाओ, आई विल पार्क ओवर हियर, एंड ये वाली चीज़ हो गई. या फिर मस्ती मस्ती में कुछ बोल दिया कि अरे यार तू तो ऐसा है, अरे यार तू तो वैसा है. यू नो, अब इस चीज़ को मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ. लड़के लोग बहुत जल्दी प्रवोक हो जाते हैं, बहुत जल्दी यू नो एंगर्स में आ जाते हैं, बहुत जल्दी एंगर में आ जाते हैं, बहुत जल्दी फ्यूरियस हो जाते हैं. एंड जो आपके सीनियर लड़के हैं, दे हैव गॉन थ्रू द सेम फेस, एंड वो कुछ हरकतें, एक्शंस ऐसे ही करते हैं टू प्रवोक यू गाइज, ताकि यू नो आप कुछ उल्टा बोलो एंड उनके 10 बंदे आके तुम्हें पीट दें. दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वॉचिंग. दिस इज लाइक अ प्रॉपर ऐसे यू नो एक चेन है जो मैं देखती आ रही हूँ अपने कॉलेज एक्सपीरियंस से भी. लड़के होते हैं, दे जस्ट नीड टू प्रवोक यू, से यू समथिंग दैट यू से समथिंग बैक, आर्ग्यू, फाइट, एंड बस वो तुम्हारे को कर देंगे. एंड वो तुमसे सीनियर है, तुमसे पहले हैं. यू डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, दे डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम. आप कितने भी गुंडे हो, कितने भी शेर हो, बट वाई डू यू हैव टू कम इन टू दीज थिंग्स. तुम्हें लगता है ना लड़कों की लड़ाई करके, मारपीट करके तुम्हारी कोई चौड़ बन रही है, या लड़कियों के आगे भी तुम्हारी यू नो एक रेपो बन जाएगी. ओह दैट गाय, ओह दैट ain't हैपनिंग ब्रो, दैट ain't हैपनिंग. तुम पिटोगे, पीटोगे, खून आएगा, हरकतें होंगी. दैट इज सच अ मेस. माई एक्सट्रीम कॉलेज गाइड फॉर यू गाइज इज कि गाइज, डू नॉट be a part of unnecessary matters. Do not be a part of unnecessary matters. Do not fight. Let go करो. कुछ बोल रहे हैं, कान से सुनो, निकाल दो. कोई बुली नहीं हो रहे तुम, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही. अगर तुम कुछ बोलो चौड़ में आके, एंड यू डोंट हैव पीपल राइट बिहाइंड यू और राइट विद यू एट दैट पॉइंट, एंड वो तुम्हें आके कुछ बोले और तुम किसी भी एक बंदे को कुछ बोल दो, भाई वो ना उनकी चेन होती है सीनियर्स की, एंड उनको तो मज़े आते हैं ये सब करके. बट वाई डू यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट? डोंट
मतलब डोंट इंडल्ज इन टू अननेसेसरी फाइट्स. इग्नोर करो जितना इग्नोर कर सकते हो. वो कह रहे गाड़ी हटा दो, अरे भाई हटा दो, क्या कर लोगे तुम गाड़ी वहाँ रख के? उसको लगानी है लगा दो, लगाने दो, सिंपल एज दैट. वो तुमसे कुछ बोल रहे हैं तो ज़्यादा बहस मत करो. इट इज़ माई ओनली एडवाइस. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से. बस फालतू में ये तुम्हें लगता है ना कि कोई चौड़ वौड़ बन जाएगी, तो नहीं. एंड स्पेशली आपके पेरेंट्स आपको कॉलेज में भेज रहे हैं इतनी फीसें दे के, इतना सब कुछ करके. वो नहीं चाहते कि आप पीटो या पिट के आओ, आपके खून निकल रहे हो, चोटें लगी हो. और ये वाली चीज़ एक जगह पे एंड नहीं होती है. दिस इज़ ऑल्सो दैट यू गाइज नीड टू नो. दिस इज़ नॉट स्कूल की क्लास में लड़ाई हुई एंड वहीं ख़त्म हो गई. कॉलेज लाइफ में वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं. एक बार तुम पीटोगे, अगली बार उनके बंदे आके मारेंगे, फिर तुम्हारे बंदे फिर से आएंगे. एंड इट इज़ अ चेन दैट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड इट कैन end on result in a lot of chaos. It can have like very bad results, lead to very bad results. So now we will talk about making friends as we enter college. जैसे मैंने पहले बताया कि आप बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हो गए, आप किसी को जानते नहीं, वो आपको नहीं जानते. So the first thing that you have to do when you go in college is go and interact. Don't be shy. डोंट बी ऐसे कि आप एक सीट पे बैठे हुए हो साइड पे ऐसे दुबक के एंड तुम्हारे पे लोग आएंगे बात करने के लिए. कोई नहीं आने वाला बात करने के लिए, कोई अटेंशन नहीं मिलने वाली है तुम्हें कि भाई क्या हो गया, अकेले क्यों बैठा है भाई, क्या हो गया. नहीं, नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन with any of you guys. You have to be very very extrovert. Yes, what I mean with extrovert is go and interact. Don't be shy. अब इसकी भी एक टिप होती है. जब आप जा रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप बातें करोगे अच्छी तरह, इंटरैक्ट करो, गेट टू नो देम. The first interaction and थोड़ा starting का beginning of this series is only about to get to know more about the person. Simple. About the classmates. You don't have to overshare. Nobody is your best friend and घुसते ही कोई आपकी best friend या bestie नहीं बन जाएगा. The college friendships don't last. जो फर्स्टली बनते हैं, जो फर्स्ट एकदम फ्रेंडशिप्स बनते हैं, वो बहुत बार लास्ट नहीं करते हैं. एंड यू डोंट हैव टू ओवर शेयर फॉर श्योर. आपको बस अपनी अभी आपको वाइब मैच करनी है. आपको देखनी है दैट इज दैट पर्सन एंड मेरी वाइब मैच हो रही है कि नहीं. यू हैव टू बी completely normal. Go interact, talk ki hi, where are you from? I'm from this place and what you are up to and like this thing, that thing. Normal like that. lunch करने जाना शुरू करो ऐसे, but do not overshare about anything because जब वो friendships टूटेगी या फिर कल को वो फ्रेंडशिप्स नहीं बनी और अगर लड़ाई भी नहीं हुई लेकिन रैंडमली यू गाइस ड्रिफ्ट अपार्ट, कल को वो बातें बहुत आराम से मिसयूज होनी चाहिए. फील द वाइब कि हाँ क्या मुझे उस बंदे से वो वाइब मिल रही है. दैट आर दे इंटरेस्टेड in having me or talking to me. Is that guy or that girl is interested to talk to me? If they are giving you that vibe कि हाँ we like talking to you. and अगर वो कह रहे हैं ना हाँ कि ऐसे वाला कि वो ना एक फेस से पता चल जाता है that they are not interested to talk to you, just move out from that place. तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उधर रहने की. It is as simple as that. The next thing is, एक होता है कि आप जा रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो एंड जो मैंने अभी पॉइंट बोला दैट यू नो जज एंड फील द वाइब नहीं है, सो जस्ट मूव आउट. यू डोंट नीड टू बी दैट पर्सन हु इज स्टक दैट बी माई फ्रेंड टॉक टू मी गिविंग अननेसेसरी अटेंशन. नहीं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी अटेंशन. जस्ट बी इन अ लिमिट. एवरीथिंग इज़ गुड इफ़ इट इज़ इन अ लिमिट. स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप्स भी एक लिमिट में रखो, एक लिमिट में. एंड डू नॉट गेट योर सेल्फ अ टैग. मतलब बहुत बार ये टैग मिल जाता है, अरे यार ये तो चेप होता है, अरे यार ये तो चेप होती है, यार ये तो बड़ी चेप सी बंदी है. अपना एक क्लास मेंटेन करो, एक एटीट्यूड. आई एम नॉट सेइंग कि भाई एटीट्यूड में बैठे रहो, इंटरैक्ट करो, अच्छे लोग मिलेंगे उनसे बातें करो, बट अगर नहीं फील हो रही वो वाइब, जस्ट मूव आउट ऑफ दैट प्लेस. डोंट गेट स्टक टू ओनली वन फ्रेंड सर्कल और वो एक दो बंदों के साथ जैसे आप स्टक हो जाते हो स्टार्टिंग में. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आपके दोस्त सब है, बट आपको जानना सबको है. दैट इज वॉट आई मीन. मैसिव टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज इज डोंट शो ऑफ. डोंट डू दैट हवाबाजी वाली थिंग दैट पीपल डू कि कॉलेज में आके अरे हम पे तो ये है, अरे हम पे तो ये है, अरे आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. अरे ब्रो, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिली क्या करती है. नोबडी इज इंटरेस्टेड. एंड अगर तुम ये करोगे ना तो तुम कूल, तुम्हें लगता है ना कि हम तो कूल बन रहे हैं, हमने अपने पूरे ब्रैक करके आए हैं. नहीं, तुम कूल तो बिल्कुल नहीं बनते. उल्टा तुमको ना
ये वाला टैग मिल जाता है, अरे यार ये हवाबाज आ गया, अरे यार कितना फेंकता है, कितना फेंकू है। जेंटल, बी पोलाइट, आराम से बातें करो, अच्छी तरह बातें करो, रिस्पेक्टफुली बात करो। पोलाइट, बी हेल्पफुल, हेल्प करो उनकी कि हाँ ये असाइनमेंट करवा दो, बातें करो, क्लास में हेल्प कर दी। अगर कोई बंदा ब्रेक में अकेला है तो जस्ट ऑफर हिम कि कम लेट्स हैव लंच टुगेदर। डोंट बी अ पीपल प्लीजर प्लीज, एंड डू नॉट चेंज योर सेल्फ टू फिट इन अ सर्टन ग्रुप। कि अगर कोई ग्रुप बहुत फैसिनेटिंग लग गया कॉलेज लाइफ में, या तुम्हें कोई बंदा या बंदी बहुत फैसिनेटिंग लगे, एंड टू बी देयर फ्रेंड्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप कि यार ये तो बड़ी मौज करते हैं, या तो समथिंग लाइक दैट। जैसे एक बंदे का माइंड सेट हो जाता है व्हेन दे are into the college life. No, you don't need to be a people pleaser, and you do not need to change yourself for anybody, because you are going to regret that at the end, and that is the reality. Do not try to fit in a group which is not meant for you, क्योंकि तुम उस ग्रुप में फिट भी हो जाओगे एंड देन जब वो चीज़ें won't work out, you will be like the most saddest person. Join a freaking society as soon as you enter your college life, your first year. I just want you guys to be a part of a society. College societies, you can, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक स्पेशली अगर आपका टैलेंट है कोई चीज़, या आप किसी चीज़ में बहुत हॉबी है आपकी, ये आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, या समथिंग लाइक दैट, गो, सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, गो एंड जॉइन द फ्रिकिंग सोसाइटी। एंड अगर आप नहीं अच्छे हो फिर तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, जस्ट सी वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन। अब ये मत कहना कि आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता, अच्छा नहीं हो आप किसी चीज़ में इज अलग, एंड आपका इंटरेस्ट होना और ना होना इज डिफरेंट। I am a dancer. I am a dancer, and I have been into dancing since the beginning of my life, from my school life. But when I entered college life, I knew that the fashion society, ramp walks and stuff is something that attracts me, and I want to do that stuff. So I joined the freaking fashion society. Rejections भी मिलेंगे, re-auditions में जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ. Practice makes a man perfect, but you need to join a freaking society, because the level of exposure you guys are going to get when you join a society, the level of friends that you guys are going to make, the practice sessions, the life, the travel for the competitions. Oh God, that is the most beautiful part. And I just request you guys कि जैसे ही कॉलेज में एंटर करो, find a society for yourself. Either it is social work का कोई society, if you are into social work and stuff and you love, teaching, guiding, go in for that. Singing, sports, dancing, acting societies. Oh God, if you want to go in acting, you can surely show your talent in your acting society, and don't be shy. ये शर्माना मत कि भाई हमसे नहीं होगा, बहुत लोग देख रहे हैं। अरे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट बी दैट, को याद भी नहीं रखेगा कि तुमने क्या किया है। तुम्हें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, एंड जॉइन अ फ्रिकिंग सोसाइटी इन वॉट एवर थिंक यू आर कंफर्टेबल। और अगर एक चीज़ में बात नहीं बन रही, कोई और चीज़ ज्वाइन कर लो जहाँ बात बन रही है। लेकिन ऐसे मत करना कि नहीं यार मुझे तो इसी सोसाइटी में जाना है, और अगर इसमें नहीं हुआ तो भाई मैं जाऊँगा ही नहीं। अरे कोई और सोसाइटी ज्वाइन कर लो, सोशल क्लब वाली कर लो, किसी में भी कर लो, बट बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज, एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट एडवाइस। अगर तुम कॉलेज में आके किसी सोसाइटी के पार्ट नहीं रहे, देन आपने अपनी कॉलेज लाइफ को कुछ नहीं जिया है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ फैशन सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज, एंड आई स्वेयर आई हैड द बेस्ट टाइम। ओके, तो ये तो एक टॉपिक है जिस पे मुझे बहुत अच्छी तरह बात करनी चाहिए आप लोगों से। वैसे मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए, आप लोग इतने समझदार होंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना चीज़ें सिखा रखी होगी ऑफ कोर्स, बट मैं अब टिप्स दे रही हूँ। तो एक टिप मेरी तरफ से ये भी है दैट आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलने वाला है व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर योर कॉलेज लाइफ। एंड विद फ्रीडम व्हाट आई मीन इज लिटरली फ्रीडम। You don't have your parents around, you don't have anybody known around you, you are starting from scratch as I said. तो आपको एक अलग लेवल का फ्रीडम मिलेगा, and this is how you need to manage your freedom. Do not misuse your freedom, do not misuse your freedom. As I told, जैसे आप बंदों से मिलोगे, कोई बहुत एक्सट्रीम होगा चीज़ों में और कोई बंदा बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा, as I told, and वो चीज़ आप समझ रहे हो what I'm talking about. So don't be a part of that bullshit at all. आपको ना ऐसे लोग मिलेंगे, अरे भाई तू ट्राई करना, अरे करना यार ट्राई, अरे करना, अरे करना, एंड वो ट्राई में when you become addicts of those freaking stuff you won't know. एंड अगर तुम्हें लगता है ना कूल बनने के लिए तुम ये करोगे, एंड कॉलेज में अरे भाई ओ यू स्मोक, ओ यू डू वीड, एंड ओ यू ड्रिंक, एंड तुम्हें लगता है कि हमसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं हो भाई, नहीं हो, कोई कूल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्राई, मतलब
that is my friendly advice. You should try everything in your life, but with a self control. You should have a self control कि एक try कर लिया तो बस end. कि if you have that picture clear that I don't want to do it, you don't need to have that peer pressure कि हाँ मुझे ये करना है क्योंकि मेरे group of friends करते हैं, या फिर मैं cool दिखूंगा ये करके, या फिर लड़की पटेगी ये करके, या फिर लड़का पटेगा ये करके. No, you don't have to be a part of that bullshit at all. Make your things clear in your mind. अगर वही वाली बात होती है ना कि अगर तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है, तुम्हें कुछ ट्राई करना है, तुम्हारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, ट्राई इट आउट. I'm not saying do not. I being a part of that thing, I'm saying try it out. But do not be addicts. Do not make it a daily use वाला thing. एक बार ज़िंदगी में ट्राई कर लिया, अब मैक्सिमम 2 बार कर लिया and done. You should be done. Excess of everything is very bad. And being addicts of these kind of things when you enter your college life, जहाँ तुम्हें exposure मिल रहा है, freedom मिल रहा है, and you enter into these stuff, it is not cool at all. This is not right at all. So वही वाली बात है, self control रखो, peer pressure में मत आओ, अपना learn to say no. Learn to say no. No bro, I don't want to try it. अरे यार तू क्या है यार, तू तो बिल्कुल cool नहीं है. नहीं हूँ cool, but I don't want to do this stuff. Simple as that. And if you do it, I would request you all to please control. And अगर तुम नहीं कर पा रहे हो control and you are addicts of it, at least do not make anybody forced to do that thing. So that is simple as that. अपने काम से काम रखो, तुम करते हो करो, और नहीं करते मत करो. सेल्फ कंट्रोल रखो, peer pressure में मत आओ. Use your freedom nicely. Do not misuse your freedom. Lastly, keep your style game strong. You need to keep your style game strong because in the starting of this video I told you a very simple line. First impression is the last impression. First impression is the last impression, and I mean it. You need to keep your style game strong. Style casual, style basic. ज़्यादा over the top जाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब of course if you love to be like into that boho vibes and you know dress something for girls, if I'm saying, so go for it girls. That is definitely what you need to go. But also on the other side, you need to be basic and casual. You need to style basic, style casual. Do not do over. Not overdo anything because नहीं अच्छा लगता है. Layering is the new trend. Go in for that. Always prefer shoes over heels. Always prefer shoes over heels. Go in for shoes. Be comfortable because it is always about comfort over fashion. And you girls don't need to wear this big or this big heels because तुम्हें campus में घूमना है यार. पहली चीज़ it is not comfortable and also it doesn't look good. So as I said, style basics. The next thing is subtle makeup. Either than doing this kind of like makeup जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा over हो, go in for like basic everyday makeup. And if you guys want me to share my everyday makeup routine, I'm going to you know share it अगर तुम लोग comment section में बोलोगे, of course. And please go in for a basic makeup rather than doing things like these. And also my tip is that go in for affordable shopping. Go for Sarojini, Lajpat, street style shopping rather than going in for बहुत ही expensive shopping. Of course you can buy your bottom wear and stuff like jeans and stuff from a good brand because वो ज़्यादा time last करती हैं. But especially for your tops and t-shirts, even for guys, for your t-shirts like graphic tees and stuff like that, either than you know investing in one t-shirt for 3K, you know invest in 10 or 15 t-shirts in 3K that you guys are going to get easily because आप हर रोज कॉलेज में कपड़े रिपीट करोगे तो that won't even look cool. I'm not saying कि कोई बहुत वेला है जो आपके कपड़े जज करेंगे, बट हाँ यार आपको खुद से होगा कि यार I need to style more. So go in for Sarojini, Lajpat or any kind of you know Palika Bazaar, Janpat Market, Connaught Place, street style markets. Go in and bulk में अच्छी shopping करो. And I'm not saying pick up anything. Just hunt and you are going to find some very good and cool stuff for very affordable price. So go in for affordable shopping. And lastly, okay, so very last tip for you all, maintain a routine, maintain a cycle and follow a good and healthy lifestyle because आप जब कॉलेज लाइफ में आओगे आपका पूरा वो नहीं होता, एक सिस्टम चेंज हो जाएगा एज इन दैट आपका पूरा एक साइकिल चेंज हो जाता है, यू नो एक रूटीन चेंज हो जाता है, आपका खाने पीने का रूटीन चेंज हो जाएगा. तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव a timetable or a routine and set it that I need to have this thing because आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है when you enter your college life because आप मस्ती में कॉलेज के दोस्तों के साथ एंड इन सब में ना आप
छोड़ देते हो अपना खाना पीना, एंड दैट इज़ द रियलिटी बिकॉज आई हैव फेस दैट थिंग एंड दैट इज़ रियली ट्रू. सो प्लीज़ इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना एक रूटीन सेट कर लो. बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, एंड दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो. एंड प्लीज़ कमेंट्स में बता के जाना कि आपको और कैसी वीडियोज़ चाहिए. कमेंट्स में प्लीज़ इंगेज करना ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ. और लाइक करके जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड लाइक करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी. कमेंट करके जाना, शेयर करना अपने सारे बडीज से जो आप कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाले हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो. बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गोइंग टू कम वेरी वेरी सून. सो बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.